thank you everyone for joining this session. So good evening, ladies and gentlemen, to all of you. Today we have with us one and only Mr. Nilesh Shah. Most of us already know him very well. He's one of the most popular, I would say, CEO in mutual fund industries. And just for the interest of everyone, he's currently the managing director of Kotak Asset Management Company. Before that, he has led ICICI Prudential as well as worked with Franklin Templeton. In fact, as a matter of fact, all the AMCs and fund houses he worked with, they were ranked among the top, or in fact, the top fund house in India. He's arguably like I said, very popular industry. He has over 3 decades of experience in capital markets. He's a gold medalist, chartered accountant. Currently, he's also a part-time member with the Economic Advisory Council to the Prime Minister. Besides that, he also holds prestigious positions with the UIDAI, which handles Aadhaar, AMFI, the Association of Mutual Funds, and also part of the SEBI's committee. So you can imagine how busy he is. And so that's why I would really like to thank Nilesh Bhai to be part of this session. And with this, although I can go on and on to talk about his talents and achievements, but I would like to stop here and hand it over to Nilesh Ji to share his insights and views on the markets as well as on the expectation of the budget, which is a big event coming up this month. So Nilesh Bhai, please take the stage and enlighten us with your thoughts and your knowledge and views. Thank you. Thank you, Manjit Bhai. Very good evening to everyone. I'll just share the presentation. Now it is visible? Yes, sir. Okay. So if we look at Indian economy, it's doing really well. The numbers in last 3 years has been truly amazing. And we are one of the fastest growing major economy in the world. If we look at the momentum in current year, that is FY25, advanced tax collection is up about 28%. People will pay tax only when they are doing well. So the momentum is continuing. If we have to measure the future growth, RBI governor made a statement in Bombay Chamber's annual general meeting that India is at the threshold of a major structural shift in its growth trajectory. And he believed that growth will be now in higher single digit. So our last 3 years growth is good. Current year momentum is fine. And going forward also, it looks good. If we have to measure this, it is something like a train. Earlier, India was a coach or dibba to the global growth train. दुनिया चलती थी, हम भी साथ में चलते थे. Now we are becoming engine of global growth. There was a time when we were contributing incrementally 2 to 3% of global GDP. And I'm talking about 3-year average, not 1 year, 2 year number. Now that number is 6%. Tomorrow that number will become 10% plus. So जब हम डिब्बे से इंजन बन गए हैं ग्लोबल ग्रोथ ट्रेन के along with China and America, तो हमने तो अच्छा किया है, उस पे कोई दो राह नहीं है. Then the question which comes to voters' verdict ऐसा क्यों आया? Now there is a reason why voters voted the way they voted. In the same train parlance, train is running fine, but it is running 1 hour late or 1 year late. तो जो प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग हैं उनको लग रहा है ट्रेन लेट चल रही है. जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं, they are reasonably fine. What do I mean by this? COVID pushed our growth rate down by about 1.5 years. We have now started covering up, but we are still 7% below our pre-pandemic growth rate. एक बार गिर गए, फिर उठ के दौड़ना चालू किया, but अभी भी 1 साल पीछे चल रहे हैं. The second challenge for India is कि ट्रेन का एक डिब्बा AC का है, दूसरा नॉन AC है. What do I mean by this? There are 13 districts in India around urban cities like Mumbai, Ahmedabad.
Jaipur, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Bangalore, which collectively contributes half of India's GDP. And बाकी के 692 डिस्ट्रिक्ट मिला के बाकी का भारत बनाते हैं. If you are living in this urban areas, you find growth is happening. If you are living in semi-urban rural area, then maybe you don't benefit from growth as much. तो एक डिब्बा एसी है, एक डिब्बा नॉन एसी है. अब हमारे यहाँ पे जो चल रहा है वो दुनिया का दस्तूर है. All over the world, if we witness, this kind of peculiarity remains. About 4% of land mass provides half of world's GDP, and balance 96% land mass gives other half. इंडिया में अगर देखा जाए तो there is always rich, middle class and poor staying together. Today, 1% of Indians are as rich as France. 27% are as middle income as Indonesia. But 72% who are living sub-Saharan Africa lifestyle. We are moving people from poor to middle income and middle income to rich. But speed बढ़ा सकते हैं. What are good things happening in India? Well, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बड़े जोर शोर से कर रही है. बिटवीन 2014 एंड 2024 हमने ऑलमोस्ट उतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जितना 2013 को था. इस साल इस बजट में भी ये मोमेंटम चालू रहेगा, बिकॉज सरकार को 1,23,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिला है फ्रॉम आरबीआई डिविडेंड इनकम. आरबीआई ने पिछले साल 87,000 करोड़ डिविडेंड दिया था, इस साल 2 लाख करोड़ दे रहे हैं. तो 1,23,000 करोड़ सरकार के पास एक्स्ट्रा है इस बजट में, और इसीलिए उम्मीद लगती है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जारी रहेगा. ऑब्वियसली जो इलेक्शन रिजल्ट आया है वो सरकार की उम्मीद से कम था, एंड उसकी कुछ इंपैक्ट तो ग्रोथ के ऊपर पड़ेगी. कुछ चीजें जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब पीछे चला जाएगा. इसके ऊपर अब कोई बात नहीं होगी. इससे हमारी ग्रोथ रेट के ऊपर कोई बहुत बड़ी इंपैक्ट नहीं गिरेगी. कुछ चीजें फिस्कल प्रूडेंस, डिफेंस, कंजम्पशन बूस्ट, डिजिटल इंडिया, ये पहले की तरह चलता रहेगा. इस बजट में इन सारी चीजों के लिए और प्रावधान होगा और अलोकेशन होगा, और इससे हमारे ग्रोथ के मोमेंटम को बढ़ावा मिलेगा. कुछ चीजें पहले की तरह चलती रहेगी जो बजट के बाहर रहेगी. असेट मोनेटाइजेशन है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये गाड़ी चलती रहेगी. कुछ चीजें जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है बट अनफॉर्चुनेटली उसे पीछे रखा जाएगा. फार्म रिफॉर्म्स मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं कर पाई तो कोलिएशन गवर्नमेंट कैसे पुश कर पाएगी. जुडिशियल रिफॉर्म कहां से होंगे. स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट लाइक एयर इंडिया अब मुश्किल लगता है. तो हमें उम्मीद ये करनी है कि इस बजट में जो मोमेंटम हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगाया है वो चलता रहे. आरबीआई ने जो 1,23,000 करोड़ का एडिशनल डिविडेंड दिया है उसका सपोर्ट बजट के मोमेंटम को मिलता रहे, और ये क्रूशियल चीजें जो हम नहीं कर पा रहे हैं उसे आज नहीं तो कल करने के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस बन जाए. ओवरऑल हमें लगता है कि FY25 और FY26 की ग्रोथ पे कोई बहुत बड़ी इंपैक्ट नहीं आएगी इन चीजों की वजह से. इफ एट ऑल इसे बढ़ावा मिल सकता है बिकॉज ऑफ आरबीआई डिविडेंड, बट इवेंचुअली वी नीड टू क्रिएट कंसेंसस फॉर टेकिंग टफ डिसीजंस. इकोनॉमी में चैलेंज कहां पे है? वेल, 45% ऑफ आवर वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. दुनिया में बहुत कम ऐसे देश है जहां पे इस प्रकार के आदमी एग्रीकल्चर में काम करते होंगे. एन एग्रीकल्चर employee gets about 1/6 of what a person will get in industry or services. तो नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, कमाई कम है,
ऑब्वियसली इकोनॉमी को झटका लगता है। क्या करना चाहिए? वेल, हमें चाइना की तरह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज डोमिनेट करनी चाहिए। 90% से ज्यादा सोलर प्रोडक्ट चाइना में बनते हैं, 85% से ज्यादा बैटरीज चाइना में बनती है, 50% से ज्यादा जूते चाइना बनाता है, स्मार्टफोन चाइना बनाता है। तो कैसे हम इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज जॉब क्रिएट कर सके कि पूरी दुनिया को हम इंडिया से माल सामान दे सके। एक और चीज जो आज की तारीख में भारत में प्रॉब्लमेटिक है, वो कंजम्पशन एट बॉटम एंड ऑफ पिरामिड है। रूरल कंजम्पशन अर्बन कंजम्पशन से पीछे चल मास मार्केट प्रोडक्ट जो है वह प्रीमियम प्रोडक्ट से पीछे चल रहा है। अब एक मतलब जो पॉजिटिव साइन हमें दिख रही है वो रूरल इंडिया में है। मनरेगा की डिमांड कम हो रही है। ये शायद इंडिकेशन दे रहा है कि अब रूरल इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर हो रही है। एक चीज जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए, ऑयल के दाम है। हमारी कुंडली में राहु काल तब चालू होता है जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं। पिछले कुछ समय से ऑयल 70, 80, $75 के आसपास घूम रहा था, बट अब जो आसार उभर के आ रहे हैं वो कहता है कि ऑयल शायद यहां से और ऊपर जाएगा। ऑयल कुछ समय के लिए 80, $90 चला जाए हम अफोर्ड कर पाएंगे, बट अगर ये $100 पे जाके टिक जाए तो हमारी इकोनॉमी को एक झटका लग सकता है। तीसरी चीज जो हमें चिंताजनक लगती है वो पावर प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। पावर डिमांड 15% बढ़ती है एक साल में, पावर कैपेसिटी उतनी नहीं बढ़ती। नतीजा यह है कि आने वाले समय में हमें पावर शॉर्टेजेस देखने को मिल सकती है और उसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी पे जरूर पड़ेगी। अब ये सारी चीजों को अगर इक्विटी मार्केट में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी इकोनॉमी अच्छा कर रही है। कुछ चैलेंजेस ऑब्वियसली है, बट हम उस चैलेंजेस को मैनेज कर पाएंगे ना। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है नीलेश भाई, अब यहां से और कितना ऊपर जाएगा? वेल, पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि मार्केट कहां नहीं जाएगा। अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 132% है, हिस्टोरिकल एवरेज 85% है। अगर मार्केट कैप अपनी हिस्टोरिकल एवरेज पे आ गया तो 24,000 वाला निफ्टी 18,000 पे दिखेगा। हमें लगता है इसकी गुंजाइश बहुत ही कम है। देयर इज अ वेरी 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 लो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट थिंग हैपनिंग। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो ऑल टाइम हाई पे है बिकॉज कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई लेवल पे है। आज से तकरीबन 10 साल पहले टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट 4 लाख करोड़ था, आज वही बढ़ के 14 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। अगले साल 16 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। 10 साल के अंदर कॉर्पोरेट प्रॉफिट मोटा मोटा 4 गुना बढ़ा है। ऑब्वियसली वही चीज मार्केट कैप में दिखने को मिल रही है। मोर इंपॉर्टेंटली जो क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट है, जो कंपनी के नतीजे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक समय था कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करती थी बट कैश फ्लो जनरेट नहीं होता था। पिछले 10 सालों में कंपनी के नतीजे में प्रॉफिट भी आता है और कैश फ्लो भी आता है। तो ये कॉर्पोरेट डीलिवरेज में देखने को मिलता है। जब क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट अच्छा हो, अपने आप वैल्यूएशन भी ज्यादा मिलता है। ओवरऑल अगर मार्केट का वैल्यूएशन देखे तो लार्ज कैप अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है, स्मॉल एंड मिड कैप थोड़े प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। एक 37% प्रीमियम है, दूसरा 41% प्रीमियम है। बट अर्निंग्स ग्रोथ भी स्मॉल एंड मिड कैप में
लार्ज कैप के सामने काफी तेज है। ओवरऑल अगर देखें तो ज्यादातर मार्केट अपनी 10 ईयर एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कुछ क्षेत्र में जैसे कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, गैप बहुत ज्यादा है। कुछ क्षेत्र में जैसे बैंक है, गैप एक्चुअली नेगेटिव है। बट ओवरऑल मार्केट अपने 10 ईयर एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही है, कोई बहुत ऊपर नहीं है, बहुत नीचे नहीं है। एक जो डर लगता है मार्केट में, जब प्रमोटर बेचना चालू करे, अपनी कंपनी में क्या हो रहा है, उसकी क्या वैल्यू है, ये प्रमोटर से ज्यादा कौन जानता है। पिछले तकरीबन सिर्फ 4 महीनों में, अप्रैल मई जून के 3 महीनों में एक्चुअली 1,20,000 करोड़ की सेलिंग मार्केट में हुई है। उसमें से ऑलमोस्ट 64,000 करोड़ प्रमोटर्स ने बेची है। जब भी प्रमोटर बेचे, मार्केट में ध्यान रखना चाहिए और उनके स्टॉक खरीदते समय 2 बार सोचना चाहिए। अगर हम इंडिया का शेयर देखें, ग्लोबल जीडीपी में हमारा शेयर 3.6% है और मार्केट कैप में बढ़ के 4.2% हो गया है। ये जो गैप है 0.6% का, वो दर्शाता है कि हम दुनिया से प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। एंड मे बी जब तक हमारा ग्रोथ बना रहेगा, तब तक ये प्रीमियम चलता रहेगा। बाकी देशों के सामने हमारी कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छे हैं और इसीलिए उन्हें वैल्यूएशन भी गांव से अच्छा मिल रहा है। इस साल निफ्टी 50 की अर्निंग पर शेयर 1142 रुपया और अगले साल के लिए 16% ग्रोथ होके 1327 रुपए के आसपास पहुंचेगी। अगर ये नंबर आ जाते हैं तो फंडामेंटली ये कहना उचित होगा कि मार्केट में बड़े करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा करेक्शन जो हमने कोविड के समय में देखा या ग्लोबल सबप्राइम क्राइसिस के समय देखा, वैसा करेक्शन आता हुआ नहीं दिखता है। फंडामेंटल के साथ साथ मार्केट में पैसों की जरूरत है। अगर पैसे जेब में नहीं हो तो फंडामेंटल के उतने मायने नहीं रखते शॉर्ट टर्म में। आज की तारीख में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 4 लाख करोड़ का फायर पावर है। एसआईपी के जरिए, ईपीएफओ के जरिए, बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे असेट एलोकेटर फंड्स के जरिए। बट एफपीआई अगर 4 लाख करोड़ की सेलिंग कर दे तो अगले साल में म्यूचुअल फंड ही उसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये जो पैसों का पावर फंडामेंटल्स के साथ है, वो कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट में बहुत बड़े करेक्शन की गुंजाइश बहुत कम है। कुछ समय पहले भारत में वर्ल्ड कप हुआ था। वहां पे ग्लेन मैक्सवेल साहब ने अफगानिस्तान के सामने एक बड़ी दिलचस्प पारी खेली थी। दोहरा शतक लगा के हारी हुई बाजी जीत में बदल दी थी। उनकी वो इनिंग देखने के बाद मैंने लिखा था कि रिटेल इन्वेस्टर इज लाइक ग्लेन मैक्सवेल। तब पता नहीं था कि इलेक्शन वाले दिन हम रिटेल इन्वेस्टर को ग्लेन मैक्सवेल की तरह खेलता देख पाएंगे। एफपीआई ने रिजल्ट का नंबर देख के काफी धुआंधार सेलिंग की। कैश एफएनओ दोनों मिला के 20-25 हजार करोड़ से कम नहीं बेचा होगा। रिटेल इन्वेस्टर ने उस दिन 21,000 करोड़ रुपए की बाइंग डायरेक्ट इक्विटी में करी। म्यूचुअल फंड में 7-8 हजार करोड़ रुपए दिए। अपनी एसआईपी चालू रखी। महीने में जून के तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट में लगाए। तो इस तरह का रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी हमें उम्मीद देता है कि मार्केट में बड़े करेक्शन की गुंजाइश बहुत कम है।
एक सवाल ये उठता है कि भाई ग्लेन मैक्सवेल खाली वनडे वर्ल्ड कप में खेला, बाद में तो ऑस्ट्रेलिया T20 की सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर को देखें तो कोविड के समय में 3 महीनों में एफपीआई ने 60-70 हजार करोड़ की सेलिंग कर दी थी। वो रिटेल इन्वेस्टर ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ली। रशिया यूक्रेन का जो समय था अक्टूबर 21 से लेके जून 22 तक का, तब टेस्ट मैच की तरह एफपीआई ने सेलिंग की, 2.5 लाख करोड़ की सेलिंग की। रिटेल इन्वेस्टर उसे भी अपना लिया। एंड T20 जैसी गेम इलेक्शन रिजल्ट के दिन पे देखी तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर अब इतने मैच्योर हो चुके हैं कि वनडे भी खेल लेते हैं, T20 भी खेल लेते हैं और टेस्ट मैच भी खेल लेते हैं। फंडामेंटल्स और रिटेल इन्वेस्टर्स का ये पार्टिसिपेशन हमें विश्वास देता है कि मार्केट में बहुत बड़े करेक्शन की बहुत कम गुंजाइश है। देन दूसरा सवाल उठता है कि कहां पे नहीं जाना चाहिए, इस मार्केट में किस चीज से सावधानी रखी जाए। वेल, IRFC और HDFC बैंक दोनों बहुत अच्छी कंपनी है, बट IRFC HDFC बैंक से तकरीबन दुगने वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, तो वो समझ के बाहर है। भेल और L&T दोनों बहुत अच्छी कंपनी है, बट भेल जब L&T से 9 गुना वैल्यूएशन पे ट्रेड करे तो थोड़ा समझ के परे लगता है। इंडियन ओवरसीज बैंक और एक्सिस बैंक दोनों बहुत अच्छी बैंक है, बट IOB जब एक्सिस बैंक से दुगने वैल्यूएशन पे ट्रेड करे तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है। हमें लगता है कि ये जो कंपनीज है वहां पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम होने की वजह से वैल्यूएशन महंगे हैं। इन लो फ्लोटिंग स्टॉक एंड मोर एक्सपेंसिव काउंटर्स में थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। यहां पे आगे जाके रिटर्न आने की गुंजाइश थोड़ी कम लगती है। माइंड यू, ये स्लाइड हम 6 महीने से घुमा रहे हैं और अब तक तो ये सारे स्टॉक ऊपर ही गए हैं, लेकिन आने वाले समय में इन वैल्यूएशन पे इन कंपनी में निवेश करके ज्यादा पैसे बनाने की गुंजाइश बहुत कम है। इस वक्त हमारा व्यू है स्मॉल कैप में थोड़ी सावधानी बरतिए, मिड कैप में आप निवेश कर सकते हैं सोच समझ के, लार्ज कैप अभी भी निवेश के लिए योग्य है। एंड ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में एक न्यूट्रल एलोकेशन टू इक्विटी करके चलाइए। लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी अच्छी लगती है, बट ज्यादातर चीजें मार्केट में प्राइस हो चुकी है। यहां से मार्केट कहां जाएगा? जब ये स्लाइड बनाई थी तब 23,000 की निफ्टी थी, आज 24,000 पे पहुंच गई है। 24,000 निफ्टी पे मार्केट ने यह डिस्काउंट किया है, ये प्राइस किया है कि US फेड आज नहीं तो कल ब्याज की दरें काटेगा। अगर US फेड ब्याज की दरें काटता है मार्केट और आगे बढ़ता रहेगा, और अगर नहीं काटता है तो शायद यहीं पे रहेगा, और अगर बढ़ा देता है तो शायद अपनी मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट 5 साल के लिए बनी रहेगी, यह मार्केट डिस्काउंट करके बैठा है। कल को उठ के अगर कुछ हादसा होता है सरकार में तो ऑब्वियसली मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा। ऑयल प्राइसेस $85 पे है, मार्केट ये उम्मीद लगा के बैठा है कि ऑयल के दाम वापस $80 की तरफ चले जाएंगे। अगर ऑयल के दाम नीचे जाते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऑयल के दाम ऊपर चले जाते हैं तो मार्केट नीचे आने की उम्मीद ज्यादा है। कंजम्पशन में रिकवरी आ जाएगी, मार्केट चलने लगेगा, यह उम्मीद इस वक्त है। जियोपॉलिटिकल रिस्क, कोई नया बम नहीं फूटेगा। रशिया यूक्रेन इजराइल हमास आवाज करते रहेंगे, बट कोई नया चाइना ताइवान या ऐसी कोई नई चीज नहीं खड़ी होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
कंपनी के नतीजे अच्छे आते रहेंगे। आज मार्केट ये सारी चीजें डिस्काउंट करके बैठा है 24,000 लेवल पे। इसमें से घटनाएं मार्केट के अनुसार बनी तो ऊपर जाने की जगह बनी रहेगी और धीरे धीरे करके मार्केट आगे बढ़ता रहेगा। बट अगर इसमें से कुछ घटनाएं विपरीत हुई अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मार्केट, then we may see a correction. Where should one invest going forward? Well, three sectors looks attractive. One is bank index. Private sector banks have delivered virtually no return over last 5 years. PSU banks have multiplied. We believe now time has come to invest into private sector banks. Valuations are favorable. Business is doing well. The second sector to focus upon is FMCG. Valuations have come down in FMCG. Monsoon is expected to be good. In the budget, there will be boost for consumption. घूम फिर के FMCG और प्राइवेट बैंक ये दोनों सेक्टर को यहां से मार्केट में आउट परफॉर्मेंस मिले वैसा हमें लगता है। एक सेक्टर आईटी इंडस्ट्री है। अभी अभी TCS ने जो रिजल्ट दिया उम्मीद से अच्छा है। अगर बाकी सारी आईटी कंपनी के नतीजे भी उसी तरह अच्छे आते रहे तो मेरे हिसाब से आईटी क्षेत्र को भी एक बढ़ावा सपोर्ट मिल जाएगा। यह एक कंपैरिजन है 19 से 24 के बीच में प्रॉफिट कितना बढ़ा और मार्केट कैप कितना बढ़ा। बैंक्स में प्रॉफिट 36% पर एनम बढ़ा। 55,000 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 2.5 लाख करोड़ हो गया। मार्केट कैप उसके सामने सिर्फ 15% बढ़ा। प्राइवेट बैंक्स में डी रेटिंग हुई है और इसीलिए हम पहले स्लाइड में बताए कि प्राइवेट बैंक्स में निवेश करने योग्य लगता है। बाकी अगर देखा जाए तो मार्केट का रिटर्न जो पिछले 5 सालों में 18% के आसपास था, दैट इज डायरेक्टली लिंक टू प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट जितना बढ़ेगा उतना ही मार्केट कैप बढ़ने की गुंजाइश रहती है। लुकिंग एट इंडियन इक्विटी, हमें हमेशा एक स्विच कंपनी की एडवर्टाइजमेंट याद आती है। पटेक फिलिप करके वॉच वाले ऐसे अपनी घड़ी बेचते हैं। यू नेवर एक्चुअली ओन अ पटेक फिलिप, यू merely लुक आफ्टर इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हमारा अमृतकाल है, भारत विकसित होने की दिशा में जा रहा है एंड यहाँ पे जो निवेश करेगा उसे उसका बेनिफिट इवेंचुअली मिलेगा। Finally, if I have to summarize what to expect in 2024, एक ग्लोबल ग्रोथ स्लो होगा थोड़ा सा और यूएस फेड को लेके सारी सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड धीरे धीरे करके रेट कट की बातें चालू करेगा। फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में सबसे लंबी मैच्योरिटी, सबसे लंबे ड्यूरेशन वाला प्रोडक्ट लेना चाहिए। आने वाले 18 महीनों में ब्याज की दरें कम होगी। यूएस फेड पहले काटेगा, आरबीआई बाद में काटेगा। तो जो लंबी मैच्योरिटी के डेट फंड्स हैं या डेट प्रोडक्ट्स हैं उसे सबसे ज्यादा फायदा होगा। गोल्ड में अभी भी लगता है कि कुछ समय के लिए तेजी बरकरार रहेगी। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदने की सुराग में है। इक्विटी से इस लेवल पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करना जरूरी है। पिछले साल स्मॉल कैप ने 50-60% रिटर्न दिए, मीडियम कैप्स ने 30-40% दिए, लार्ज कैप ने 20-30% दिए। नॉर्मली ये रिटर्न 2-2, 3-3 साल के होते हैं। अब ये सारा रिटर्न आपको फ्रंट एंड मिल गया तो आने वाले समय में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कम करना मुनासिब होगा। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ लार्ज कैप में अच्छा लगता है, जैसा मैंने पहले बताया। एफएमसीजी एंड प्राइवेट बैंक यहां से मार्केट को आउट परफॉर्म करे वैसा लगता है। आईटी एंड केमिकल क्षेत्र में रिजल्ट देखने के बाद हम निवेश करने की सोच सकते हैं। और जो लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर से जहां पे वैल्यूएशन बहुत महंगा है वहां पे थोड़ी सावधानी बरतती है।
This is how broadly we see 2024, but happy to take your questions. Thank you very much, Nilesh bhai. I'm sure it'll be difficult for people to find questions. आपकी बहुत ही comprehensive presentation थी, covering all the aspects. So, dear participants, कोई भी questions हैं, if you guys have any doubt, queries, please raise it on the chat. Drop us a message. We'll take it forward with Nilesh ji. In the meantime, Nilesh bhai, you have a big fan following. One of our customers, Dr. Bhushan Shah, he's in Canada and he could not join. And he had a basic question. Sensex at 80K, he's scared. How will you convince him? So एक ही चीज पे ध्यान रखिए, मार्केट कैप ऑल टाइम हाई लेवल पे, प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई लेवल पे है। आपको जब सेंसेक्स 40,000 था डर नहीं लगा था, बिकॉज उस टाइम पे प्रॉफिट आ रहा था पीछे पीछे। जो 40,000 पे था वही 80,000 सेंसेक्स पे है। प्रॉफिट 4 गुना हो गया 10 साल के अंदर, तो मार्केट कैप भी उतना बढ़ गया है। वैल्यूएशन वाइज ये हर्षद मेहता का समय नहीं है, न टेलीकॉम मीडिया टेक्नोलॉजी बबल का समय है। उस दिनों में हमारे पी रेशो 100 के थे। इस वक्त मार्केट में कुछ स्टॉक के पी रेशो 100 के है, बट पूरी मार्केट का वैल्यूएशन तो अभी भी 20-22 के आसपास है। तो न बहुत सस्ती मार्केट है, न बहुत महंगी मार्केट है, फेयर प्राइस मार्केट है। उतार चढ़ाव तो आता रहेगा, ये तो मार्केट का नियम है, बट बहुत बड़ा करेक्शन आने की गुंजाइश कम दिखती है, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज हम कोई बहुत महंगे नहीं है। Thank you very much, sir. So the next question comes from our participants. जो emerging sectors हैं, जैसे कि AI हो गया, EV हो गया, what's your opinion about that? Solar हो गया, दूसरे कोई एनर्जी सेक्टर हो गया, आपका ओपिनियन उस बारे में क्या है? सो अजय भाई, ये सब जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र है उसमें निवेश करते समय हमेशा पोर्टफोलियो अप्रोच रखना चाहिए। एक हम लोग फंड मैनेजर कोई साइंटिस्ट तो है नहीं कि पता कर सके यह चलेगा ये नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो 19वीं सदी में भी थे, व्हेन आई से 19वीं सदी 1920 में, बट फिर पेट्रोल एंड डीजल गाड़ी चल गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल बंद हो गए। आज की तारीख में अगर आप ऑटोमोबाइल में देखें तो एक बाजू पेट्रोल डीजल कारें चल रही है और वहां पे टेक्नोलॉजिकली इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है कि उनके जो डिस्चार्ज है वो कम हो रहे हैं। एक गूगल सर्च करके पढ़ रहा था, एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो एनवायरनमेंट से, आसमान से कार्बन को कैप्चर करती है, हाइड्रोजन से मिक्स करके मीथेन गैस बनाती है और उससे पेट्रोल डीजल गाड़ी को चलाती है। ऑब्वियसली जब वो मीथेन गैस बाहर छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैप्चर हो जाता है, तो वो एनवायरमेंटल को पोल्यूट नहीं करता। दूसरा हाइब्रिड व्हीकल है, हमने ग्रैंड विटारा गाड़ी देखी, तो वहां पे गाड़ी के मोमेंटम से आपकी माइलेज बढ़ रही है। तीसरा इलेक्ट्रिक है, चौथा हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली गाड़ी है। अब ये 4 टेक्नोलॉजी में कौन सी चलेगी ये मेरे लिए कहना नामुमकिन है। हम जितने एक्सपर्ट के पास जाते हैं उनकी सुनते हैं, सब अपने अपने ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट को पुश करते हैं। ईवी वाला बोलता है ईवी फ्यूचर है, हाइब्रिड वाला बोलता है हाइब्रिड फ्यूचर है, हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन की बात करता है और कार्बन कैप्चर वाला उसकी बात करता है। हम उनसे बोलते हैं कि आपकी बातें छोड़िए, पैसे कहाँ पे लगे वो बताइए। ईवी वाले ने वाकई ईवी में पैसे लगाए हैं, तो पर्सन व्हेन इज पुटिंग मनी वेयर हिज माउथ इज, कि वो बंदा इसमें बिलीव करता है। तो हमारा अप्रोच एकदम सिंपल है, वी कांट प्रिडिक्ट फ्यूचर, वी डोंट नो विच टेक्नोलॉजी विल वर्क। तो आज की तारीख में जो जो ऑप्शन मिले उसमें निवेश करिए, और जब क्लैरिटी आ जाए तब बड़ी तेजी से उसके अंदर आप मूव कर जाइए। पावर में भी वही है,
थर्मल पावर चलता है, सोलर पावर चलता है, हाइड्रो पावर चलता है, न्यूक्लियर चलता है। बट अजय भाई, आपने एक स्पाइडरमैन की मूवी देखी होगी, डॉक्टर ऑक्टोपस वाली। उसके हम्म। पीछे 4 हाथ थे, और वो एक स्टार्टिंग मूवी में सन बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर स्पाइडरमैन उसे रोकता है। वो मूवी नहीं रही है, रियल लाइफ बन गया है। कैलिफोर्निया की एक लेबोरेटरी में उन्होंने 2 बार न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए सन बना दिया। जितनी एनर्जी लेता है उससे ज्यादा एनर्जी देता है। चाइना में अमेरिका से 10 गुने ज्यादा साइंटिस्ट और 10 गुना ज्यादा पैसा लगा है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। किसी दिन लोगों का मानना है, एंड किसी दिन मतलब सिर्फ 10 साल के अंदर, बाई 2034 आपके घर में सूर्य होगा। अब ऐसा कुछ हो गया तो रिन्यूएबल एनर्जी से लेके न्यूक्लियर एनर्जी सब कहाँ जाएगी? तो एग्री। माइंड खुला रखने का, सारे ऑप्शन में इन्वेस्ट करने का, एंड जहां पे आपको कन्विक्शन आ जाए कि अब ये फ्यूचर है, तब वहां पे ज्यादा निवेश करना चाहिए। दैट इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो। In short, asset allocation is very important. एब्सोल्युटली। So Nilesh bhai, next question comes on the valuation. Mid small, everybody is worried कि थोड़ा सा overvalued है. किसी का एक पोर्टफोलियो लेट से मिड एंड स्मॉल में थोड़ा सा ज्यादा हो, या SIPs मिड स्मॉल में थोड़ा सा ज्यादा हो, should we redirect those to large caps? सो अगर आप ओवरवेट है स्मॉल एंड मिड कैप में, आपको रखना है 40% पोर्टफोलियो स्मॉल एंड मिड कैप में, और आपका मार्केट परफॉर्मेंस की वजह से 70% हो गया, तो 10-20% प्रॉफिट बुक करने में कोई बुरी बात नहीं है। बिकॉज आपकी रिस्क एपेटाइट से ज्यादा अगर स्मॉल एंड मिड कैप में है, तो ये प्रॉफिट बुक करने का समय है। बट अभी जैसे किसी को रखना है 30 साल के लिए, 20 साल के लिए, और उनके पोर्टफोलियो में स्मॉल एंड मिड कैप अभी भी 15-20-25% है, तो हम्म। उनको प्रॉफिट बुक कराने का कोई मतलब नहीं है। भाई हम्म। अगर नीचे आ जाए तो 25% का 40% कर देना। तो हम्म। मार्केट वैल्यूएशन देखने से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो का कितना अलोकेशन है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एंड सेकंड, जो मैंने बताया कि कुछ लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर्स है जहां पे वैल्यूएशन समझ के बाहर है, वहां पे आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। Thank you, sir. And your views on US presidential elections, Trump and Biden? सो नॉर्मली हमने जो देखा है अजय भाई कि एक्सटर्नल पॉलिसी बदलती नहीं है प्रेसिडेंट के आने से। एज दे से इन पॉलिटिक्स इंटरेस्ट आर परमानेंट। Hmm. बट एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट इज बाय एंड लार्ज प्रो इंडिया। जॉर्ज बुश ने हमारे साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर। व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज देयर, ही वाज very moody and very unpredictable, but by and large he loved India. अपने लिए एक्चुअली कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा बाइडेन आए ट्रंप आए, बिकॉज फॉर यूएस इंटरेस्ट विल मैटर। as long as we are on right side of US, President Biden as well as Trump will support us. If they think we are on the wrong side of US, they will not support us. Hmm. So politically we will prefer President Trump, but he is so unpredictable कि always question mark रहेगा. President Biden also has been by and large good to India. What matters to us is कि ये लोग आके इकोनॉमी कैसे चलाएंगे यूएस की। अल्टीमेटली ग्लोबल ग्रोथ ट्रेन का सबसे बड़ा इंजन यूएस है। Yes. एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ बढ़ाएंगे, टैक्स काटेंगे, और ग्रोथ को टर्बो चार्ज करेंगे फॉर अमेरिका। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लेके वो आ जाएंगे। उससे ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट आ सकती है। उनके कुछ स्टेप ऐसे हो सकते हैं जो चाइना को ठीक भी कर दे। तो हमें
इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली अमेरिकन इलेक्शन रिजल्ट से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प आते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी बीइंग मोर प्रो इंडिया विल बी माइल्डली बेनिफिशियल. Thank you, Nilesh bhai. Okay. Yeah, thank you, Nilesh bhai, for your really good insights. So just continuing on the US, there's a question around currently the US tech has been rallied obviously because of the few really large AI-driven stocks, and the current P is around 30. So your view on Nasdaq, although corporate earnings are still being quite high, that's one question. Yes. So मंजीत भाई, यूएस तो हमसे भी बहुत बड़ी और बहुत कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है. एक साइड पे वहां पे डेट बढ़ रहा है कंज्यूमर्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, एंड उनका डेट अब $35 ट्रिलियन पहुंच गया है. भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 80% के आसपास है गवर्नमेंट डेट का, वहां पे वो 125% पे पहुंच गया है. जो नैस्डैक हम देख रहे हैं या S&P 500 देख रहे हैं, उसमें कुछ कंपनीज बहुत अच्छा मुनाफा कर रही है और बहुत अच्छे मार्केट कैप के ऊपर ट्रेड कर रही है, और बाकी की कंपनीज लटक रही है. मैग्निफिसेंट 7 जो है, अमेजोन, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, अब ये 7 कंपनी ही नैस्डैक को ऊपर लेके जा रही है. बाकी की 93 कंपनी कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है. नाउ कब तक ये प्रकार की रैली चलती रहेगी, विच इज लेड बाय फ्यू लार्ज कंपनी? मंजीत भाई, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बिग विल बिकम बिगर एंड बेटर. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स निवेश कर सकते हैं रिसर्च में. छोटी मोटी कंपनी उनके सामने कहां खड़ी रहेगी? तो हमें लगता है कि इंस्टेड ऑफ नास्डैक 100, मैग्निफिसेंट 7 में निवेश करेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा, बिकॉज इन कंपनीज के जरिए ही नास्डैक चल रहा है. Got it. I think I agree with you, seeing the trends. So now going back to our Indian markets and growth story, I think after listening to so much of positivity from you for the future, it reminds me of in one of the events, I think with CNBC on Business Today, you said that I think God is an Indian now. So he is biased towards India and India's growth. So this reinforces that statement, sir. So I'll just take up the other topic around the budget, because I think after the elections be given, now we have budget coming up in another 10-12 days. How do you see really any announcements around budget which could impact, or it will be more growth driven, because of which the market is already rallying for last few weeks? सो बजट में पिछले 10 साल में हमने देखा है कि फोकस उनका फिस्कल प्रूडेंस पे रहा है, कि जितनी अपनी औकात हो उससे थोड़ा ही ज्यादा खर्चा करे, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करे. सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करे. रोड बनाओ, पावर प्लांट बनाओ, पोर्ट बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, मेट्रो बनाओ, और जितनी तेजी से एग्जीक्यूशन हो सके करिए. ऑब्वियसली हम चाइना तो है नहीं कि यहाँ रोड बनाना है तो बनाना है, फिर किसी की नहीं सुनेंगे. हमारे यहाँ पे तो कोर्ट भी इंजंक्शन दे सकती है, लोग भी मोर्चा निकाल सकते हैं, एंड बहुत चीजें आती हैं. बट फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने में सरकार ने बहुत काम किया है. इलेक्शन जितना भी हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए उतना ही महत्व रखता है, तो बॉटम ऑफ पिरामिड को फ्री फूड दिया गया, मनरेगा से जॉब दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना से घर दिए गए. तो एक दोहरा बैलेंसिंग चल रहा है. वोट्स के लिए जो बॉटम ऑफ पिरामिड के लिए काम करना है वो करिए, उनकी लाइफस्टाइल अपग्रेड करिए, एंड एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बना के ग्रोथ को और ज्यादा सपोर्ट करिए. यह गाड़ी आगे भी चलती रहेगी. और इस बार सरकार की जेब में 1,23,000 करोड़ एडिशनल पड़ा है आरबीआई डिविडेंड का. चाहे तो 1 लाख करोड़ का डाइवेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बिकॉज पीएसयू स्टॉक आसमान पे चढ़े हुए हैं.
तो सरकार की जेब में पैसा है और इसीलिए ये काम और तेज गति से होगा और ज्यादा होगा, ऐसा लगता है। Okay, Nilesh, and this other point I think you've been hearing people is about around the capital gains. Is there any changes expected there, and what's your view on how will that impact? सो कैपिटल गेन्स टैक्स अगर आप देखें तो वो एस पहले निकाला गया बिकॉज एसटीटी लगाया गया था, फिर एसटीटी चलता रहा और एलटीसीजी वापस आ गया, अब दोनों चल रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि सरकार एलटीसीजी को टच नहीं करेगी, बट क्या होगा वो तो उन्हीं को मालूम। बाजार ने जो अब तक मोमेंटम दिखा है वो यही दर्शा रहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई चेंज नहीं होगा। अगर चेंज हुआ बजट के अंदर तो मेरे हिसाब से मार्केट में एक करेक्शन आ जाएगा। Okay, thanks for the view. I think it's good to hear that probably there should not be any changes. Thanks for sharing that view, sir. I think one more important question, then I will hand over to Ajay if any other questions. I would like to for you to give a number. Where do you see markets 5 years, 10 years from now? Any? सो मंजीत भाई, हम लोग ने एक कल शो किया था, मैं था, राजीव आनंद थे एक्सिस बैंक के, और मिस्टर जगन्नाथन स्वराज्य मैगजीन के थे। और यही पूछा गया है कि 10 साल में इकोनॉमी कहाँ पहुंचेगी। तो जग्गी जी ने $10 बिलियन का, तो हम दोनों वहीं पे एग्री हो गए। बट मुझे लगता है कि अगर हम लोग रिफॉर्म्स वाकई कर पाए, मेहनत करे, थोड़ा जोर लगाए, तो $10 ट्रिलियन की $12 ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे हाथ में है। ऑब्वियसली लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। अगर 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाती है 4 ट्रिलियन से जो आज है, तो मोटा मोटा मार्केट कैप भी 3 गुना बढ़ेगा ना। हो सकता है कि 2.5 गुना बढ़े, 3.5 गुना बढ़े, बट मोटा मोटा 3 गुना बढ़ जाएगा। तो 10 साल में अगर हमारी इकोनॉमी 3 गुना होती है, 4 ट्रिलियन से 12 ट्रिलियन, तो मार्केट कैप भी उसके आसपास रहेगा। शायद 2.5 गुना बढ़ेगा, शायद 3.5 गुना बढ़ेगा, शायद 3.25 गुना बढ़ेगा, शायद 3 गुना बढ़ेगा। तो मोटा मोटा आप ये पकड़ के चलिए, ये पटेक फिलिप वॉच है आपके पास, अपने लिए रखनी है, बच्चों को दे जानी है। ठीक है। Thank you, Nilesh bhai. Thank you for the very insightful thoughts. आपकी कन्विंसिंग पावर से ये तो पता पड़ गया कि दिस डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया, इट्स इंडियाज डेकेड। इज इट इंडिया सेंचुरी? सो अजय भाई, अगर आप देखें तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो दिन से जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, तो हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि हमारे राम भाई, श्याम भाई, मगन भाई बाहर के देश चले गए सेटल होने के लिए। हमने तो यही सुना कि सब लोग हिंदुस्तान आते गए, लास्ट में वास्को डी गामा भी आ गया। तो ये दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी तो उस जमाने में भी अच्छी थी, एंड जो सोने की चिड़िया कहते थे वो वाकई सही था। तकरीबन 18वीं सदी तक भारत दुनिया का सबसे बड़े जीडीपी में रहता था, चाइना के आगे पीछे साथ साथ। कोलोनाइजेशन में हमारी बैंड बज गई, 200 साल तक कोई ग्रोथ नहीं हुआ, अंग्रेजों ने हमें पूरा लूट लिया। अब वहां से वापस बढ़ने लगे हैं इस वक्त। इट इज आवर डिकेड बिकॉज वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। बट ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इसलिए बनी है बिकॉज हमने पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, पॉलिटिकल लीडरशिप ली, एग्जीक्यूशन किया, लोगों ने मेहनत की। मतलब एक पंचतंत्र की, अजय भाई आपने कहानी सुनी होगी, 2 बंदर और 1 बिल्ली। 2 बंदर को रोटी मिलती है, बिल्ली पूरी रोटी खा जाती है। तो पहले हम पंचतंत्र की कहानी के बंदर थे, रोटी हमें मिलती थी, बिल्ली ले जाता था। फॉर एग्जाम्पल, ईरान हमें क्रूड देता था, हमसे सबसे करीबी पड़ोसी वो है।
हमें रुपये में देता था, डॉलर नहीं मांगता था। वो रुपये यूको बैंक के बैंक अकाउंट में रखता था 10 साल पहले, 15 साल पहले, और उसी पैसों से हमारे पास चीजों की खरीदारी करता था। तो इससे बढ़िया टर्म्स आपको कहाँ मिलेगी? आप आपकी चीजें देके उनके पास से क्रूड खरीदते थे, 6 महीने की क्रेडिट मिलती थी, डिस्काउंट मिलता था। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दी, हमने वो इंपोर्ट करना बंद कर दिया। अब आप देखिए, हम पंचतंत्र की बिल्ली बन रहे हैं। रशिया के साथ यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो अमेरिका ने फिर सैंक्शन लगाई। हमने कहा कि नहीं भाई, हम तो रशिया से ही ऑयल लेंगे, आपको जो करना है करो। अभी कल या आज न्यूज़पेपर में आया कि रशियन क्रूड इंपोर्ट के ऊपर भारत को $10 बिलियन की बचत हुई। जब तक हम ये पंचतंत्र की बिल्ली बन के औरों की रोटी खाते रहेंगे तब तक ये हमारी सेंचुरी बनी रहेगी। बट लोगों को काम करना पड़ेगा, बगैर काम किए हमारी सेंचुरी नहीं बन सकती। Agreed, Nilesh bhai, agreed. What are your views on other assets like silver, cryptos, अच्छा भाई, क्रिप्टो समझना real मुश्किल estate? है। Hmm. उसमें कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है। तो अभी बारिश का मौसम में श्रावण का महीना आएगा तो कई घर में लोग श्रावण के महीने पे जुआ खेलते हैं, फैमिली बैठ के Hmm. खेलती है। तो जितना पैसा आप श्रावण के महीने में जुए पे लगा सकते हो उतना क्रिप्टो में लगा देना। गया तो गया, और कुछ बन गया तो आपका नसीब। Right. सिल्वर गोल्ड, वहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अमेरिका ने जिस तरह से रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सीज कर लिया, फ्रीज कर लिया, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड है, उसका भी उसको फायदा मिलता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में अभी भी बुल रन बाकी है, गाड़ी आगे चलती रहेगी। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, इस बजट में हो सकता है कि गोल्ड एंड सिल्वर की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हो। आज गोल्ड 75,000 रुपए के आसपास है, बिकॉज उसमें 18% टैक्स लगा है, 15% इंपोर्ट ड्यूटी, 3% जीएसटी। अगर ये टैक्स कम हो जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी 15 का 0 हो गया, तो 75,000 का सोना सीधा 65,000 में मिलेगा। वह रिस्क है। तो बजट के बाद देखिए सोने में क्या करना चाहिए। And what about real estate, sir? रियल एस्टेट लोकेशन स्पेसिफिक है। एक ही लोकेशन में अगर अच्छा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, लाइक हमने एक बंबई में कांदीवली में देखा, स्टैंड अलोन बिल्डिंग कुछ 15-20 हजार रुपया पर स्क्वायर फीट में जा रही है, और एक महिंद्रा की बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स आ रही है तो वो 35,000 40,000 में जा रही है। एक ही रोड पे, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल फैसिलिटी, प्रोजेक्ट में दुगना 2.5 गुना भाव का अंतर है। तो रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अच्छे लोकेशन पे अच्छी प्रोडक्ट जो हमेशा डिमांड में रहेगी वो आपको रिटर्न देती रहेगी। अगर बुरे लोकेशन में बुरी प्रोडक्ट में फंसे तो निकलना मुश्किल रहेगा, वहां पे पैसे नहीं बनेंगे। Thank you, Nilesh bhai. Being a investment product manufacturer, if I can call you that, what are your demands from the finance minister? What do you expect from the finance minister? What will make you happy? से मतलब अजय भाई, फाइनेंस मिनिस्टर काम कर रही है और हम लोग पैसे बना रहे हैं। Hmm. इससे अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर हमें कहाँ मिलेगी? उनकी मेहनत का फल हमें मिल रहा है। आज Hmm. जो भी आप स्टॉक मार्केट में रिटर्न देख रहे हैं उसके पीछे पूरा श्रेय फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाता है। किस बखूबी उन्होंने हमारी इकोनॉमी को नेविगेट किया। Hmm. अपने आसपास देखिए, श्रीलंका डूब चुका था, पाकिस्तान अभी भी डूबा हुआ है, नेपाल कठिनाई से गुजर रहा है, और बांग्लादेश में भी थोड़े चैलेंजेस हैं। बाकी से वो बढ़िया कर रहा है, बट फिर भी चैलेंजेस तो काफी हैं। उन सभी के बीच में भारत बहुत अच्छा कर रहा है।
तो जिस बखूबी से पिछले 10 साल पिछले 5 साल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी इकोनॉमी नेविगेट की है, बस उतना ही करता रहे और कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। जैसा काम किया है वैसा ही करती रहे और आपकी मेहनत का फल हमें मिलता रहे। Very good, sir. So last few questions on the interest rates and debt side. Akhil, आप कुछ पूछना चाहते थे? You wanted to ask something? Yeah, hi Nilesh bhai. Nilesh bhai, you have shown one slide on which you show that there are a lot of information on which the market has already discounted. So one was like in which the interest rate in US will reverse. Other was that thing that the oil prices should not fall, should not increase. It should go. Politics What था, if it's a mix and match? geopolitical. So if it's a mix of match, like for example, in US the interest rate fall, but the oil prices move up. And other thing, if the politics, if the coalition government break and other thing happened, so what is the most important factor on which the market is dependent on? सो इंटरेस्ट रेट अगर आगे पीछे होंगे अखिल भाई, या ऑयल ऊपर नीचे होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। बट अगर सरकार हिल गई तो वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आ जाएगा। आज लोग हमें 22 साल का वैल्यूएशन देने को तैयार है। सरकार अगर ढंग की नहीं रही तो लोग 15 साल का भी नहीं देंगे। तो सबसे बड़ा फटका मार्केट को लग सकता है सरकार के स्थिरता के ऊपर से। ऑयल के दाम जब भी ऊपर जाते हैं 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना इम्पैक्ट रहता है। बट हायर ऑयल प्राइसेस आर ऑलवेज कॉज फॉर अ लोअर ऑयल प्राइस। जैसे ऑयल के दाम ऊपर होंगे, लोग नई टेक्नोलॉजी में निवेश करना चालू करेंगे, लोग ऑयल कंजम्पशन कम करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑयल के दाम नीचे आ जाते हैं बिकॉज डिमांड कम होती है। ब्याज के दर भी ऑयल की तरह कभी ऊपर कभी नीचे। तो यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से, ऑयल प्राइस मूवमेंट से हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, एक टेम्पररी करेक्शन करेगा। सरकार स्थिर नहीं रही तो बड़ी इंपैक्ट आएगी बिकॉज वैल्यूएशन ही नीचे आ जाएगा। फिर 132% ऑफ मार्केट कैप टू जीडीपी की जगह पे हम 90% पे रहेंगे, 100% पे रहेंगे। स्ट्रेट वे बड़ा करेक्शन दिखेगा। Okay, thank you Nilesh bhai. So government should continue. यस। Thank you very much, Akhil. Sir, earlier start of the year there were talks कि Fed will cut rates at least 3 times in this year. Now it looks कि साल में एक बार भी हो जाए तो गनीमत है. So what do you think कि this lack of interest rate would adverse affectly? इस वक्त अखिल भाई, अजय भाई, मार्केट ये सोच के बैठा है कि सुबह को बुला शाम को घर लौट आएगा। आपने 3 रेट अभी तक नहीं काटी, अब 2 काटेंगे, अभी भी साल बाकी है। 2 नहीं काटेंगे तो 1 काटेंगे, इस साल नहीं काटेंगे तो अगली साल काटेंगे। जब तक ये भावना मार्केट में बसी है कि सुबह का बुला शाम को घर लौट आएगा, तब तक यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट नहीं काटने की कोई बड़ी इंपैक्ट नहीं दिखेगी। बट कल को उठ के अगर फेड ने ब्याज की दरें बढ़ाने की बात की, जो मार्केट डिस्काउंट नहीं कर रहा, तब करेक्शन आ सकता है। उसकी गुंजाइश बहुत कम है। वाइज मार्केट सो कन्विंस कि सुबह का बुला शाम को घर लौट आएगा बिकॉज $35 ट्रिलियन का डेट अमेरिका पे खड़ा है। 125% आपका डेट टू जीडीपी रेशो है। अगर आप 5% ब्याज देंगे ऑन दैट फुल अमाउंट, 7.5% ऑफ योर जीडीपी विल गो ओनली टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। Yes. उतना कौन अफोर्ड कर पाएगा? अमेरिकन डेफिसिट कितनी बढ़ जाएगी और एक ऐसे खड्डे में अमेरिकन इकोनॉमी गिरेगी जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद यही है कि ब्याज के दर आज नहीं तो कल कम करना पड़ेगा ताकि अमेरिकन इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है आगे चलती रहे। Thank you, Nilesh bhai. Thank you for your time. It's 6 o'clock. It's always a pleasure talking to you. I know we can go endless about it. Now I call upon Manjeet, my colleague Manjeet, to conclude.
Thank you so much, Nilesh Bhai. I think it was a very insightful and wonderful session as always. And there are a lot of thoughts and knowledge and points to go back and then talk and look forward to. Nilesh, there's one request. I think just in your style, if you would like to end with any couple of lines around a Bollywood song or any Indian mythology snippet, which becomes like a kind of a guiding memory for us. Please, sir. Otherwise, yeah. So, जो एक आपने पृथ्वीराज कपूर जी का गाना सुना होगा, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मेरे हिसाब से भारत 1800 साल सोने की चिड़िया रहा था, और यस, एक ग्रहण लग गया अंग्रेजों के आने से 200 साल के लिए। अब वो ग्रहण खत्म हो चुका है एंड वापस हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जब भी आपको कोई डाउट आ जाए मार्केट के ऊपर करेक्शन की वजह से या किसी और चीज की वजह से, तो हमेशा ये चीज को याद रखना, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो कुछ तो बात हम में है कि हम लोग मार लेंगे, तो स्टे इन्वेस्टेड। Okay, sir. Thank you. That's a Thank wonderful you way to very summarize. much, Thank you sir. so much, sir, for your time. And thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. sir.